Hello, future doctors. You're watching Dipenism. I'm Dr. Dipen Shah and future doctors. आज हम लोग डिस्कस करने वाले the beginning of new life. Yes, the first cell of new life का development आज हम लोग डिस्कस करेंगे. That is the process of fertilization. So let us begin with our discussion. So let us begin with our understanding of fertilization process. Now to define it, it is defined as the process of fusion of haploid male gamete with the haploid female gamete to produce a diploid zygote. But remember future doctors, जब भी fusion of gametes होगा उनमें actually fusion of nuclei होगा. Yes, it is the male pronucleus from the sperm cell and female pronucleus of the ovum that is actually fusing. और nuclear fusion की वजह से जो chromosomes है उनका mixing होगा and that results in formation of the diploid cell, the new life, that is the zygote. Now, in humans, this process is internal. That means fusion of gametes occurs inside the female reproductive tract. इन अदर एनिमल्स हम लोग बोलते हैं कि देयर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गए, वहां पे गैमेट्स आर रिलीज आउटसाइड द बॉडी एंड देयर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बट इन ह्यूमंस रिमेंबर इट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? दैट इज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि जो साइट है दैट इज द एम्प्यूला और इट इज नोन एज एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन. सो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन जो है वहीं पे एक्चुअल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा. दैट मीन्स द ओवम हैज टू बी अवेलेबल ओवर देयर आफ्टर द ओव्यूलेशन प्रोसेस and sperm cell has to travel up to this junction जहां पे fertilization event होगा. Now I have divided fertilization process into 4 major steps so that you can easily memorize it. तो 4 steps को मैं यहाँ पे लिख देता हूं as IPPA. Yes, Dipenism के mnemonics बहुत ही हेल्प करेंगे आपको डेफिनेटली. IPPA. Now I से जो first step होगा that we are going to discuss, that is known as the insemination. Then the second step that we are going to study is the penetration. The third step is the activation and fourth and final step is amphimixis. तो मैंने चारों steps के बारे में बता दिया, तो आप लोगों को पता है कि ये सब steps अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. तो you are going to write the answer systematically. यहाँ पे अभी ये बार कोई डबल पेज लेने का जरूरत नहीं है जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जरूरत था. So first जो step है that is the process of the insemination. So first step is insemination. एक आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन का प्रोसेस होता है जो हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के टाइम आईवीएफ के टाइम करते हैं और ये नेचुरल इंसेमाइनेशन हो रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज फ्यूचर डॉक्टर्स कि अगर हम लोग यहाँ पे फटाफट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर ले. ओके, फटाफट मैं रिप्रेजेंट करूंगा. यस, सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज डिस्चार्ज ऑफ सीमेन in the vaginal passage. So during coitus the semen is discharged. So this is known as the insemination. So insemination is nothing but the discharge of semen during copulation process. So during the copulation process this semen is discharged, and during the discharge of semen what happens is this semen contains around 300 million sperms. 300 मिलियन स्पर्म सेल्स का प्रेजेंस हो सकता है. हम लोग बोलते हैं कि जो सीमन है दैट कंटेन्स 3 to 4 ml ऑफ द फ्लूइड. सो उस फ्लूइड में 300 मिलियन स्पर्म्स का प्रेजेंस हो सकता है. नाउ इतने सारे स्पर्म सेल्स होने की वजह से द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस. तो एक की पॉइंट कि क्यों यूजुअली हम लोग ऐसा प्लांट किंगडम में भी ऑब्जर्व करते हैं कि पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, ओवम एक ही बनता है. सिमिलरली यहाँ पे एनिमल किंगडम में भी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस बट ओवम एक ही डिस्चार्ज होगा. मैं यहाँ पे ओवम को भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ. यहाँ पे ओवम आके वेट कर रहा है बट आपको पता है ये जो ओवम है ये ओवम नहीं है. दिस इज अ सेकेंडरी oocyte with corona radiata and everything. So to increase the chance of fertilization so many sperm cells are being produced in the male reproductive system और यहाँ पे discharge भी हो रहा है. Now after the insemination process has taken place in the female reproductive tract we know that there is initially acidic pH. तो उस एसिडिक pH में ये स्पर्म सेल्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे. एंड दैट इज वाई हम लोग को पता है कि जो सीमन है उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रेजेंस होगा बिकॉज ऑफ द एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स. जहां पे समाइनल वेसिकल्स जो प्रोड्यूस करते उसमें 3 कंपोनेंट्स हम लोग ने पढ़े थे.
इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम FFP, F से कौन सा कंपोनेंट था, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का काम क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट था फाइब्रिनोजन, एंड तीसरा जो है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो फ्रक्टोज का तो हम लोग को रोल पता है कि अभी स्पर्म सेल्स अभी डिस्चार्ज हुए तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट ये एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इमीडिएटली स्पर्म्स मोटिलिटी शुरू कर देंगे तो एसिडिक पीएच में दे विल बी डीजनरेटेड। सो इनिशियली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज फाइब्रिनोजन जो होगा, ये फाइब्रिनोजन इस स्पर्म सेल्स के अंदर जो फ्लूइड वगैरह है उसका कर देगा कोएगुलेशन। सो इनिशियली देयर इज कोएगुलेशन ऑफ सीमन, और उस कोएगुलेशन की वजह से एक तो स्पर्म सेल्स प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे एंड दे लैच, एक तरह से अटैच हो जाएंगे, दे लैच टुवर्ड्स द वजाइनल वॉल, थोड़े बहुत लैच भी हो जाते। सो कोएगुलेशन जो हो रहा है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये दो रोल हो गया कोएगुलेशन का। फिर हम लोग को पता है कि और एक ग्लैंड का फ्लूइड है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टैटिक फ्लूइड कंटेन्स वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें से वन ऑफ द सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस एसिड्स, क्योंकि उनका प्रोस्टैटिक फ्लूइड इज अल्कलाइन नेचर, सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक पीएच ऑफ द वजाइना। तो ये एसिडिक पीएच को क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। Also remember future doctors, this prostatic fluid also contains another chemical that is known as profibrinolysin. After the neutralization process, ये profibrinolysin gets converted into fibrinolysin, और जैसे ही फाइब्रिनोलाइसिन बन जाएगा, अभी ये जो कोएगुलेटेड सीमन था उसको अभी डिसॉल्व कर देगा, लिक्विफिकेशन कर देगा। सो फाइब्रिनोलाइसिन इज गोइंग टू प्ले द रोल इन liquefaction and now again the sperms can be activated. So basically ये जो coagulum था, जो clotting था temporary, वो भी dissolve हो जा गया क्योंकि acidic pH has been neutralized. So you can understand future doctors कि क्यों ये fibrinogen का activity जरूरी था। Prostatic fluid also contains, you have to remember, citric acid and it also contains calcium. Calcium का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है आगे इस प्रोसेस में। So remember prostate gland also produces calcium as one of its secretion. तो ये हम लोग ने बेसिक डिस्कस किया। कार्पस ग्लैंड का हम लोग ने रोल तभी पढ़ लिया था कि न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स इन द पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, नाउ वंस ये प्रोसेस हो गया है, इनसमाइनेशन होने के बाद ये जो भी सीमन का रोल था, जो हम लोग ने मेंशन किया, सीमन का जो भी रोल था बिकॉज ऑफ द फ्लूइड्स प्रेजेंट इन देम, जो मैंने यहां पे डिस्क्राइब कर दिया, एक तो फ्रक्टोज का, फाइब्रिनोजन का। उसके बाद a important process occurs during the insemination event that is known as capacitation. So capacitation का जो event होगा that happens in the female genital tract. तो ये passage में female genital tract में ये capacitation का process होगा। Now what is capacitation? जो sperm cell होगा उस sperm cell के head पे बहुत सारे प्रोटीन्स का प्रेजेंस होता है। There are many proteins present. Along with that, there are many lipids present like cholesterol on the surface. Now, ये head जो है वो एक तरह से कवर करता है एक्रोसोम को और दूसरा हो गया न्यूक्लियस। So during the capacitation process, what is happening is the fluids which are present in the female genital tract, they help in removal of coatings on head of sperm. That means एक तरह से head of sperm को is being cleaned up. The head is being cleaned up from all those proteins and cholesterol जो एक तरह के covering के तरह present है, so that अगर ये पूरा clear off हो जाएगा, so now जो भी sperm का activity होना है because of the cell organelle acrosome एंड न्यूक्लियस के बाद में फ्यूजन होगा, तो वो सब अभी आसानी से हो सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द इनसेमाइनेशन प्रोसेस इज द कैपेसिटेशन। सो कैपेसिटेशन में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के फ्लूइड्स ही हेल्प कर रहे। ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज, अभी हम लोग रोल मेंशन करते हैं इसका भी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होंगे, पीजी शॉर्ट फॉर्म दे देते, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनका रोल होगा इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेनली यूटराइन मायोमेट्रियम, यूट्राइन मायोमेट्रियम। तो ये यूट्राइन मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे जो मायोमेट्रियम का हम लोग को पता है एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम होता है, तो मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सो एक तरह से जो सीमन है इट इज गोइंग टू बी सक्ड इन। सो इन अ वे, सिंस द सीमन
is sucked in, it is also helping in the movement of sperms. Movement of sperms is being assisted by the prostaglandin secreted by the seminal vesicles. तो हर एक केमिकल कंपोनेंट का मैंने अभी रोल डिटेल में डिस्कस कर लिया. फ्रक्टोज इज गोइंग टू प्रोवाइड विद एनर्जी, फाइब्रिनोजन कोएगुलेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पैसेज सो दैट द सीमन इज सक्ड इन, और वो हेल्प करेगा. एंड प्रोस्टाग्लैंड का न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स, प्रोफाइब्रोलाइसिन फाइब्रोलाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हो गया है एसिडिक पीएच का, वो लिक्विफिकेशन कर देगा सो दैट स्पर्म्स कैन बी एक्टिवेटेड नाउ. और स्पर्म्स का एक्टिवेशन आपको याद रखना है अल्कलाइन पीएच पे होता है. दे आर एक्टिव ड्यूरिंग स्लाइटली अल्कलाइन पीएच दैट इज प्रेजेंट. और कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन प्रोसेस. और इस वजह से नाउ द स्पर्म सेल्स विल ट्रैवल ऑस एक्सटर्ना, ऑस इंटरना, यूटरस, और वहां से इट विल रीच अप टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, एम्पुला के उधर पहुंच जाएंगे. बट बहुत सारे स्पर्म सेल्स जो 300 मिलियन रिलीज हुए, उसमें से सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी फैगोसाइटोज्ड. They are going to be phagocytosed. Around 50% of sperms, they are phagocytosed by the vaginal epithelium. Vaginal epithelium से phagocytosed हो जाएंगे. बहुत सारे शायद एसिडिक पीएच की वजह से डिस्ट्रॉय भी हो जाए, डीजेनरेट भी हो जाए. एंड रेस्ट ऑफ देम विच आर हेल्दी, विच हैव दी वेरी गुड मोटिलिटी हम लोगों ने डिस्कस किया है, दैट इज अराउंड 1.5 to 4 मिलीमीटर पर मिनट, जिसका हेल्दी मोटिलिटी रेट भी है, एनर्जी भी है. दे विल ट्राई टू रीच एंड अप टू द ओवम वो पहुंच जाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन. ओके, so now what we are discussing is the second step, and the second step, future doctors, is the penetration event, jahan pe now the sperm cell is going to penetrate the ovum. now yahan pe main ek डायग्राम का रिप्रेजेंट कर रहा हूं फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आप भी साथ साथ में बना ले. सपोज दिस व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग इज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन. वाइटलाइन मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. ओके, वाइटलाइन मेम्ब्रेन एम में लिख देता, तो दिस इज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन. उसके अलावा यहां पे बहुत सारे एक्सोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. आप लोग को मैंने सेकेंडरी oocyte में डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा. दीज ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट दी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. ये हर एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स. एंड यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ द germinal vesicle. Germinal vesicle is nothing but the nucleus of the secondary oocyte, and it is arrested at the metaphase 2. आप लोग को पता है ये metaphase 2 पे arrested है. ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर का प्रेजेंस है. नाउ वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा लेयर था, तो आप लोग को याद है फ्यूचर डॉक्टर्स कि हम लोगों ने थिक ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर लेयर को रिप्रेजेंट किया था, और इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा. तो ये हम लोग अभी जोना पेलुसिडा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, इस जोना पेलुसिडा पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन receptors. There are certain receptors like this that are present on the zona pellucida. तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो एज यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स का प्रेजेंस होगा. These receptors are known as the ZP3 receptors. ZP is the symbolic representation given. तो ZP3 receptors का प्रेजेंस यहाँ पे ये होता है. इसके बाहर जो लेयर होते हैं आप लोग को पता है, रेडियली एलोंगेटेड सेल्स होते हैं विच आर ग्लूड टू ईच अदर बाय hyaluronic acid. तो यस, ये सब जो सेल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है CR, है ना, ये CR है. CR मतलब कोरोना रेडियाटा. तो दिस इज नथिंग बट कोरोना रेडियाटा. सो ये ब्यूटीफुली हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर. हाफ मैंने रिप्रेजेंट किया क्योंकि मुझे बहुत सारे इवेंट्स दिखाने. नाउ व्हाट विल हैपन पेनिट्रेशन के टाइम पे, रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के जो स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल के बारे में आप लोग को पता है कि स्पर्म सेल जो है, उस स्पर्म सेल का अभी कैपेसिटेशन हो गया. इट हैज रिसीव द कैपेसिटी कि वो अभी रीच कर सके अप टू द सेकेंडरी oocyte. ऑल्सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब भी कैपेसिटेशन हो गया है, then how do the sperm and ovum recognize each other? So remember future doctors के जो secondary oocyte है, ovum है, it secretes a glycoprotein and that glycoprotein is known as fertilizin. तो यहाँ पे fertilizin का secretion होता है.
एट द सेम टाइम ये फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन जो रिलीज किया है ओवम ने, द स्पर्म प्रोड्यूसेस अनदर टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज नोन एज एंटी फर्टिलाइजिन। तो ये सिक्रीशन फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का जो हो रहा है, ये सिक्रीशंस of the secondary oocyte and ovum helps in the process of adhesion of sperm and ovum, that is the recognition, adhesion या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ recognition, ये जो हो रहा है that is because of this fertilizing anti fertilizing। और ये दोनों chemicals किससे बने हुए, remember they are glycoproteins। एंड ये रिएक्शन जो होता है, रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली स्पीशीज स्पेसिफिक। ये पूरा स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसकी वजह से ये रिकॉग्निशन हो पाता है। एंड एग्जैक्टली इतने सारे स्पर्म सेल्स होने के बाद भी वो ओवम को आइडेंटिफाई कर पाता है, एंड दैट इज हाउ द स्पर्म सेल रीचेस अप टू द सेकेंडरी oocyte बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये एक पर्टिकुलर इवेंट आप लोग को याद रखना है, ये धीरे धीरे मैं अभी सब इरेज कर दूंगा। ओके, तो ये आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। नाउ एज ये स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, so what will happen is this sperm cell is now going to reach up to the secondary oocyte because वो glycoprotein की तरफ attract हो रहा है। As it reaches up to this part, that is the corona radiata, during this step a very important reaction is going to occur, that is the acrosomal reaction. Acrosomal reaction occurs as the sperm cell has reached up to the secondary oocyte। तो ये हम लोग स्पर्म सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसके अंदर का एक्रोजोम है और ये अंदर उसका न्यूक्लियस का प्रेजेंस है। तो फर्स्ट स्टेप में कैपेसिटेशन हुआ था, अभी एक्रोजोमल रिएक्शन। इस एक्रोजोमल रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो होगा दैट इज कैल्शियम आयंस। मैंने कुछ देर पहले बोला था कैल्शियम आयंस का इंपॉर्टेंट रोल होगा। कैल्शियम का इनफ्लक्स होना स्टार्ट होता है, देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द स्पर्म सेल, और इस कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से व्हाट हैपेंस इज जो एक्रोजोम है विच इज अ टाइप ऑफ अ लाइसोसोम, एक्रोजोम एक्टिवेट हो जाएगा एंड जो स्पर्म का मेम्ब्रेन है वो डाइजेस्ट हो जाएगा एक तरह से, एंड इट स्टार्ट्स टू रिलीज द एंजाइम। वन ऑफ द एंजाइम एक्रोजोम के एक्टिवेशन की वजह से जो रिलीज हो रहा है दैट इज नथिंग बट दैट एंजाइम इज द यालुरोनिडेज। यालुरोनिडेज, क्योंकि जो कोरोना रेडियाटा के सेल्स होते हैं दे आर ग्लूड टू ईच अदर, वहां पे एक कोरोना के सेल्स के बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ यालुरोनिडेज, यालुरोनिक एसिड, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए यालुरोनिडेज एंजाइम रिलीज होगा। दूसरा एंजाइम इज दी CPE, दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये दो एंजाइम का रिलीज हो चुका है, एंड नाउ ये कोरोना रेडियाटा को डाइजेस्ट कर दिया, यालुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर लिया, एंड नाउ स्पर्म सेल can reach up to this layer that is the zona pellucida। वहां पे पहुंच के वो किसके साथ एक्टिवेट होगा, जो स्पर्म सेल होगा इट इज गोइंग टू फर्स्ट गो एंड फ्यूज, थोड़ा और डाइजेस्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ पे जाके इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर्स कौन से हैं, द ZP3 रिसेप्टर्स। तो ZP3 रिसेप्टर्स के तो बाइंडिंग हो गया, ये एक्रोजोम का प्रेजेंस है और ये न्यूक्लियस। सो नाउ एज इट अटैचेस विद द ZP3 रिसेप्टर्स जो उसको हेल्प कर रहा है टू रीच अप टू दिस जोना पेलोसिडा लेयर, द थर्ड एंजाइम इज रिलीज्ड दैट इज नोन एज द जोनालाइसिन, और वी कॉल इट एज द एक्रोसिन, और उसकी वजह से डाइजेस्ट हो पाता है द लेयर ऑफ जोना पेलोसिडा। ओके, एंड नाउ द स्पर्म सेल कैन रीच एंड इट कैन टच द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और वो फ्यूज हो जाएगा, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, वो दोनों फ्यूज हो जाएगा, और उस वजह से, वो फ्यूजन की वजह से जो न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इनसाइड। सो दिस इज नथिंग बट द nucleus which is the haploid of the male gamete, this is the nucleus of the female gamete। तो ये फीमेल और ये मेल गैमेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। as soon as the sperm cell touches the cell membrane or the vitelline membrane of the ovum, what is observed is इस फ्यूजन की वजह से इस सेल मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल्स का प्रेजेंस होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टन चैनल्स, ओके, और वो चैनल्स में से देयर इज एंट्री ऑफ सर्टन आयंस,
और वो आयंस है सोडियम आयंस, और उस सोडियम आयंस के रिलीज होने की वजह से व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और वो डीपोलराइजेशन की वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट्स टू एक्ट एज अ बैरियर, और वो बैरियर की तरह एक्ट होने की वजह से इट इज नोन एज अ फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक करने वाला है बहुत सारे दूसरे जो स्पर्म सेल्स है विच कुड बी रीचिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte। क्योंकि 300 मिलियन स्पर्म्स है, उसमें से 50% तो फाइगोसाइटोस हो गए, लेकिन जो बहुत सारे ऑलमोस्ट 300-400 रीचेस अप टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, वहां पे वो दूसरे स्पर्म सेल्स भी यहाँ पे जो कंपीट करते रहेंगे विद डिफरेंट रिसेप्टर्स, उनको अलाउ ना किया जाए, इसके लिए सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन होगा, एंड दैट इज नोन एज अ फास्ट ब्लॉक। एंड दिस फास्ट ब्लॉक इज मेनली टू prevent polyspermy. Multiple sperm cells should not be fusing, so monospermy is allowed, polyspermy is prevented by this fast block mechanism. Once ये पूरा एक्टिवेशन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिवेशन जो होगा, ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पेनिट्रेशन होगा, और पेनिट्रेशन के साथ साथ ये जो प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया ये है स्टेप नंबर 3 आपका, जिसको हम लोग बोल लेते हैं एक्टिवेशन। So this is the process of activation. Okay. Now activation में फास्ट ब्लॉक के साथ और एक स्लो ब्लॉक भी होता है। So पेनिट्रेशन में आप लोग ने एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ लिया, एक्टिवेशन में एक फास्ट ब्लॉक और एक मेरे को मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करना है। Now apart from फास्ट ब्लॉक, यहां पे जो ये ग्रैन्यूल्स है ये भी अभी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज दिस enzymes into the perivitaline space or finally into the zona pellucida. So this is known as a slow block. This slow block is because of the cortical enzymes that are being released. तो इसको हम लोग बोलते हैं cortical reaction. So पहले हम लोगों ने पढ़ा acrosomal reaction, अभी आ रहा है cortical reaction जहां पे enzymes are released, and this released enzymes they are going to form a thick glycoprotein बैरियर। सो ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है उसको थिक कर देंगे, एंड ऑल्सो देर इज रिमूवल ऑफ ऑल द रिसेप्टर्स सो दैट बाइंडिंग ऑफ स्पर्म सेल अभी हो ही ना पाए, दैट इज ये जो ZP3 रिसेप्टर्स है उसको एक तरह से डाइजेस्ट कर लेंगे, और अगर ये डाइजेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सो नाउ दिस इज ऑल्सो गोइंग टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। सो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करने के लिए यू टू रिमेंबर दो टाइप के ब्लॉक्स थे फ्यूचर डॉक्टर्स, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक वाज बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, स्लो ब्लॉक इज बिकॉज ऑफ दिस कॉर्टिकल एंजाइम्स डिस्चार्जिंग देयर एंजाइम्स द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, एंड दैट इज व्हाई अ थिक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, रिमूवल ऑफ ZP3 रिसेप्टर्स। तो पेनिट्रेशन भी हो गया कि कैसे स्पर्म सेल हैज पेनिट्रेटेड, एक्टिवेशन भी हो गया। नाउ in other animals it is said that कि tail detaches during the fusion process, only head enters, but याद रखना humans में the entire sperm is phagocytosed, the cell membrane of the ovum is going to perform endocytosis। तो endocytosis होने की वजह से the entire sperm along with the tail enters, डेफिनेटली बाकी सब डिसॉल्व हो जाएगा, ओनली द मेल न्यूक्लियस इज गोइंग टू रिमेन एक्टिव, बाकी सब डिसॉल्व हो जाएगा। कमिंग टू द लास्ट स्टेप दैट इज द एम्फिमिक्सिस। So in the amphimixis process, future doctors you have to remember 3 events हो रहे, जिसमें first is plasmogamy, next is karyogamy, and ultimately that is resulting in syngamy. Okay, तो जब भी amphimixis, amphi मतलब 2 different gametes are being mixed, तो वहां पे फ्यूजन हो रहा है, तो इनिशियली दोनों के साइटोप्लाज्म मर्ज हो गए। तो सिंस स्पर्म सेल हैज एंटर्ड, और स्पर्म सेल का मेम्ब्रेन तो हम लोगों ने डाइजेस्ट स्टडी दिखाया था, यहाँ पे मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया था फ्रॉम अ पॉइंट, तो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट की वजह से पूरा साइटोप्लाज्म विल मिक्स विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सो यहाँ पे देयर इज मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज जो स्पर्म सेल होता है उस स्पर्म सेल के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। उसमें से डिस्टल सेंट्रियोल, रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, डिस्टल सेंट्रियोल इट अंडरगोज डिविजन, इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस
2 centrioles and ये दोनों centrioles they are going to produce the spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और आप लोगों को पता है जो न्यूक्लियस है ऑफ द सेकेंडरी साइड इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, तो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो हेल्प करेंगे टू कंप्लीट मियोसिस. नाउ कोई भी तरह का कंफ्यूजन मत रखना. सम ऑफ द बेस्ट ऑथर्स हैव डिस्क्राइब्ड डिस्टल सेंट्रियोल. इट इज नॉट द प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल प्लेज रोल इन क्लीवेज बट डिस्टल सेंट्रियोल इज गोइंग टू डिवाइड, स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा टू कंप्लीट मियोसिस 2 एंड दैट इज हाउ फाइनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मैच्योर ओवम इज फॉर्म्ड. आई हैव ऑलवेज सेड मैच्योर ओवम फीमेल्स में कभी नहीं बनता, हमेशा सेकेंडरी oocyte बनता है एंड मैच्योर ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही बनेगा. तो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन की वजह से व्हाट इज सीन इज देयर इज this union breaks MPF, that is known as the maturation promoting factor, जो cell cycle को regulate करता है, maturation promoting factor, and it promotes the activity of APC, that is known as anaphase promoting complex. तो basically metaphase 2 ब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर एंड एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, इसके लिए मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है. सो ड्यूरिंग एम्फीमिक्सिस ये एक इवेंट हो गया और अब जाके जो मेल न्यूक्लियस है इट एब्जॉर्ब्स साइटोप्लाज्म एंड इट इज नोन एज द मेल प्रोन्यूक्लियस एंड दिस मेल प्रोन्यूक्लियस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी हैप्लॉइड एंड उसका फ्यूजन हो जाएगा. अभी इसका मियोसिस 2 हो चुका है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये भी हैप्लॉइड है. सो मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है उनका फ्यूजन हो जाएगा, मतलब मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, मतलब अभी होगा कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन होने की वजह से दोनों के क्रोमोसोम्स जो है अभी कंबाइन हो जाएंगे एंड दिस कंप्लीट सिनगैमी, दैट इज fusion of the male gametes and that is how a diploid zygote is formed and diploid zygote is nothing but the fertilized ovum. पूरा का पूरा ओवम ही है. स्पर्म का कंट्रीब्यूशन कितना है? मेनली दी न्यूक्लियस, मेल से सिर्फ प्रोन्यूक्लियस का है और दूसरा इंपॉर्टेंट है डिस्टल सेंट्रियोल. बाकी जो भी है जो डिप्लॉइड जाइगोट है इट इज नथिंग बट दी फर्टिलाइज्ड ओवम. तो सिनगैमी हो गया और इस सेल को हम लोग सिन कैरियन भी बोल सकते हैं क्योंकि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस से बना है. सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सिन कैरियन और डिप्लॉइड जाइगोट और फर्टिलाइज्ड ओवम. एंड once the zygote is performed, when the zygote is formed, congratulations, yes, the first cell of new life is formed. Congratulations, the mother is expecting. We say that the mother has conceived. So finally हम लोगों ने जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा वो डिस्कस कर लिया है. यहाँ पे जाइगोट बनने की वजह से डिप्लॉइड नंबर इज स्टोर्ड, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है एंड वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन होगा. सो बहुत सारे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी आप लोग को बुक्स में मिल जाएंगे, वो पढ़ लेना है. एंड फाइनली वन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट टाइम से वी आर गोइंग टू डिस्कस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कि कैसे मिराक्युलसली बेबी का डेवलपमेंट होगा, हाउ डज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक प्लेस. सो इन डिटेल मैंने ये पूरा डिस्कस किया अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. आपको स्टेप बाय स्टेप मैं चाहता हूं कि एक समरी भी शॉर्ट में दे दूं. हम लोग ने इनसमाइनेशन में डिस्कस किया था कैपेसिटेशन का प्रोसेस, फिर हम लोग ने पेनिट्रेशन में डिस्कस किया एक्रोसोमल रिएक्शन. मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कुछ भी भूल जाए, इसके लिए एक समरी भी लिख लेना इप्पा में. और एक्टिवेशन में आप लोगों ने पढ़ा कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का. एंड लास्ट एम्फीमिक्सिस में आप लोगों ने पढ़ा दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, कैसे जाइगोट का. तो इप्पा ये आप लोगों को याद करना है और ये पूरा एक समरी आप लोग के सामने हो गया. सो आई हैव ट्राइड बेस्ट कि आपको हर एक पॉइंट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से कवर हो जाए. स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर वीडियोस. दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म.